Hello everyone. So we are starting with the life process chapter, and that is we are going to do it very quickly because we have exams coming up. So uh, just stay glued and try to understand what I'm explaining right now over here. It will be quick revision. If you want it in detail, then that is also available. You can go through that. But let's start this quickly. So we know what a life process is, right? All living things perform certain living life processes like growth and excretion and respiration and circulation, etc. Now, all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organisms, sorry, alive. Now, all those things which are helping us to survive, to stay alive and for us to survive, and helps our in the body maintenance, then those processes are known as life processes, right? Now when we talk about life processes, right, what are those life processes which we are talking about? So we are talking about growth, we're talking about digestion, we're talking about respiration, we're talking about circulation, we're talking about excretion, right? And here there is nutrition, right? So we are talking about all these life processes which are very very important. So there is a quick for learning. Uh, I had seen this somewhere, so I'm explaining that to you. That is Mrs. Nerg, right? It means movement, right? Respiration. Then there is stimulus and response. Then there is nutrition, excretion, reproduction, and growth and development. So essentially, I have covered most of them, right? Movement, or we can say transport here, right? So let's talk about first one. Please note this down, and let's talk about the first one, which is nutrition, right? So nutrition first in plants, because plants are autotroph, they can make their own food. Whereas nutrition in animals, they are heterotroph, so they are dependent on plants or any other source for their food. Now, why I'm saying plants or any other source? Because if an animal is herbivore, then they are dependent on grass or plants rather for their सर्वाइवल. लेकिन बेटा अगर वो कार्निवोर हुआ तो किस पे डिपेंडेंट है? वो हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है. हर्बीवोर एक एनिमल है. सो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, राइट? लेट्स मूव अहेड. Now, what on the basis of what I've just now told you, कौन-कौन से modes of nutrition होते हैं? Modes of nutrition होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. ऑटोट्रॉफिक क्या हो गया? जो अपने आप फूड बनाते हैं. कैसे? CO2 वाटर को यूज करके एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड. वेयरएज हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? दे आर द वंस व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर organisms for their food requirements, right? Yes, okay, let's move ahead. So as I told you, autotrophic use simple inorganic material and convert them into complex high energy molecules. Now, autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which the autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight. And this process is known as what? It is known as
फोटोसिंथेसिस, राइट। सो इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, आप लोग अपने सामने देख पा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन 6CO2 plus 6H2O along with sunlight and chlorophyll, chlorophyll की spelling गलत है यहाँ पे, gives you C6H12O6 which is glucose, releases 6O2, that means oxygen release, and along with 6 molecules of water, right? This is what we have got over here. Now जैसे कि मैंने बताया, अब ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से है, जिस हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? वो रॉ मटेरियल मिलता है इन जगहों से। सनलाइट तो आपको पता है ये सन से मिलता है। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल प्लांट में अवेलेबल होता है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। CO2 जो है वो कहाँ से मिलता है? वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और ऑक्सीजन भी वहां से फिर रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टोमेटा किस चीज में हेल्प कर रहा है? स्टोमेटा हेल्प कर रहा है गैसियस एक्सचेंज में, राइट। सो देन उसके अलावा आपका जो वाटर है, वाटर कहाँ से मिल रहा है? वाटर मिल रहा है रूट्स से, ठीक है। और रूट से ये सॉइल में अवेलेबल है और रूट्स के थ्रू ये हमारे मतलब प्लांट्स की बॉडी में पहुंच रहा है, राइट। ओके, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो कोई भी बता देगा, अब आप इतनी बार से पढ़ते आ रहे हो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? लीफ। मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में, क्योंकि वहां पे एबंडेंस में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है और क्लोरोफिल क्या है? उसके अंदर प्रेजेंट होने वाला ग्रीन पिगमेंट। क्या क्या मेन इवेंट्स हैं? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्या क्या मेन इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अलोंग विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद वो कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी और फाइनली वो क्या करेगी? वो एनर्जी CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले वो एक मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे कहते हैं सुक्रोज, जो कि पूरे प्लांट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब एक्सेस बच जाता है तो फिर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। ओके देन आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा क्या है? जैसे कि पहले बताया था मैंने आपको, स्टोमेटा क्या है? दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन व्हाट? प्रेजेंट ऑन द लीव्स, राइट। तो ये बहुत सारे पोर्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं और ये गैसेस एक्सचेंज में, ट्रांसपिरेशन में और बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। फंक्शंस की क्या क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे बनाया, लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर है, देखिए उसके अंदर उसके गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है? ये हैं, दीज आर गार्ड सेल्स, ठीक है। दीज आर गार्ड सेल्स, right? These are epidermal cell, right? And these are these small ones. ये तो आपको पता ही है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या है? इसको मैं किसी और कलर से शेड कर देती हूँ। ये क्या है? ये है स्टोमेटा। व्हाट इज दिस? स्टोमा, सॉरी। ये क्या है? स्टोमा। स्टोमा क्या होता है मैम? अभी तो आप स्टोमेटा कह रहे थे। स्टोमा एक सिंगल पोर को कहते हैं और स्टोमेटा मेनी पोर्स को कहा जाता है। अब आते हैं क्विकली हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, राइट। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तीन मेनली किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर नरिशमेंट। उसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से मेन तीन टाइप्स होते हैं? होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। होलोजोइक क्या? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी, उन्हें उनमें कहता है अमीबा एंड एनिमल्स। वेयर सेप्रोफिटिक क्या है? वो डेड एंड डीके मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं जैसे फंजाई। और पैरासिटिक क्या है? वो डिपेंडेंट तो किसी और पे होते हैं और उसके ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं और वो लिविंग होता है, ठीक है। अब
कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक हैं ये कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए हम पहले एक बेसिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है अमीबा। ठीक है ना, ये अमीबा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो यूनिसेलुलर पर सारे वो काम कर रहा है और एटलीस्ट हमें एक डिपिक्ट आइडिया दे देता है कि कैसे हमारे बाकी सेल्स भी या हमारी बॉडी कैसे काम करती होगी। तो सबसे पहले तो देखिए आप, फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, फूड पार्टिकल जैसे ही पहुंचा तो एक फॉल्स फीड जैसा स्ट्रक्चर अमीबा से निकल रहे हैं जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रैप कर ले रहे हैं फूड पार्टिकल को और फूड वैक्यूल बना रहे हैं, राइट। एंड जब ये फूड वैक्यूल when it is captured, the vacuole captures the food, then slowly the digestive enzymes start pouring in, and they do what, they basically digest the food item that they have got, and slowly it gets diffused and nutrients get diffused inside the amoeba, and the waste material again will be formed, will be collected inside a vacuole and will be thrown out of the amoeba and or amoeba, the body of amoeba, right. Then the cell of amoeba, sorry. Then तो इसको अगर हम देखें तो amoeba form the pseudopodia, then extensions of cell, which are what, extensions of cell membrane. They capture food, then they take in food inside a vacuole known as food vacuole. Then the digestion starts. While the digestion is happening, the diffusion of important and nutrients takes place, and the undigested food material moves to the surface of the cell and is thrown out from the cell. I hope it's all clear to everyone. Paramecium में there is a cilia which takes just works like pseudopodia and does the same thing, right? Similar thing, right? तो क्या क्या हमारे पास steps हो गए होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक की स्पेलिंग है होलोजोइक, राइट, अभी आपने देखा भी था। ओके, सो क्या क्या स्टेप्स हो गए हमारे पास। सबसे पहले इंडाइजेशन, ठीक है, देन देयर इज डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना, देन एब्जॉर्प्शन, देन उसको यूज करना, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एंड आई मीन यूज करना, नॉट एब्जॉर्ब करना, यूज करना, एंड अनवांटेड जो मटेरियल है उसको बाहर निकालना। ठीक है, अब यही चीज इंसानों में, इन ह्यूमन बींग्स कैसे वर्कआउट होती है उसको एक बार देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो क्या हो रहा है, the human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands, so mouth, teeth, tongue, right। फिर वो माउथ क्या कर रहा है, इनटेक ऑफ होल फूड, देन टीथ क्या कर रहे हैं, उसे च्यू कर रहे हैं, टंग क्या कर रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं, टेस्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, और swallowing में, पुशिंग डाउन में हेल्प कर रहे हैं along with the saliva। ये सलाइवा कहाँ से आ रहा है, ये सलाइवा आ रहा है, किससे आ रहा है, ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, अलोंग विद द टंग, वो उसको पूरा मैस्टिकेट करने में, मतलब कि उसको पूरा च्यू करके उसको एक पेस्ट जैसा बनाने में हेल्प कर रहा है, और इसको इजीली पुश कर रहा है हमारे ईसोफेगस में, राइट। और उस सलाइवा और म्यूकस में बेसिकली कैसे एंजाइम्स है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं, जैसे रोटी हम खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है, उसको वो ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज is the form of carbohydrate which is being used by our body readily, and it has the process of it has a process of its own. So whatever food we intake, we have to first convert that food into glucose, and then only our body will or incorporate that and any form of it into that glucose metabolizing pathway, and get the प्रोसेस गोइंग, राइट। सो पहले जो भी चीज आएगी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, राइट। देन ईसोफेगस क्या कर रहा है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर रिदमिक मूवमेंट व्हिच आर फाउंड नॉट ओनली इन ईसोफेगस, कैन बी सीन इजीली इन द ईसोफेगस, बट कैन बी it's all over present in the alimentary canal. Then there is stomach, ये क्या है, J shaped body है जो कि gastric glands के अंदर present है, and वो gastric juice secrete करते हैं। और ये gastric juice भाई क्या secrete ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इतना हो हल्ला हो रहा है,
तो वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं, वो सीक्रेट कर रहे हैं पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, HCl जो कि मीडियम को, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, और उससे क्या फायदा है, उससे ये फायदा है कि जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट हो गया। मैम एक्टिवेट का मतलब, पेप्सिन वैसे पेप्सिनोजेन के फॉर्म में पाया जाता है, राइट, और वो जो है जैसी HCl एसिडिक मीडियम बनाता है तो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पेप्सिन फिर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और म्यूकस क्या कर रहा है, ये सब जब हो रहा है, जब HCl सीक्रेट हो रहा है, तो जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी HCl, ओके। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में फाइनली कन्वर्ट करें, मतलब फाइनल कन्वर्जन, फाइनल फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट करें जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको अपटेक और एसिमिलेट कर सकती है। तो फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई हैं जो फिर इन सारे जो कन्वर्टेड फॉर्म्स हैं उनकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं या निकले हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। दीज आर व्हाट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ यही सब नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स फ्रॉम द लिवर बाइल जूस। क्या रिसीव कर रहा है वो, लिवर से बाइल जूस से रिसीव कर रहा है, जो कि फैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फैट मॉलिक्यूल को जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में या ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि इजीली वो एब्सॉर्ब हो जाएं और एसिमिलेट हो जाएं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं हम एमल्सिफिकेशन। व्हाट डू वी कॉल इट, एमल्सिफिकेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट, बिग फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा पेनक्रियास से भी जूसेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, वो ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि फैट को अगेन ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज बेसिकली लिपिड पे काम करता है विच इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ द फैट। और तीसरा, वो इवन अमाइलेज भी प्रोड्यूस करते हैं। अमाइलेज क्या है, अमाइलेज एंजाइम जो कि आपको याद होगा सलाइवरी अमाइलेज का मतलब सलाइवा में मिलने वाला है अमाइलेज। तो वैसे ही अमाइलेज उस वहां पे क्या काम था उसका, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, यहाँ पे भी उसका यही काम है। So what is emulsification? The process of breakdown of large fat globule into smaller fat globule by bile juice, right? Large intestine absorb excess of water. Large intestine क्या करता है, बहुत सारा पानी जो है excess में उसको absorb करता है. The rest of the material is removed from the body via the anus. और जो बच जाता है, जो absorb होने के बाद जो भी undigested food material बच जाता है उसको digestion के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं, आप देख ही रहे हैं इनमें कौन कौन डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये ऊपर माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है और ये ओरल कैविटी जहां से हम एंटर कर रहे हैं। देन देयर टंग जो मैंने आपको बताया था, रोलिंग और मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। देन लिवर है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। स्टमक है जो सारे एंजाइम्स को, फूड को टेकअप कर रहा है। देन उसके बाद जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है तो बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करने लग जाते हैं, लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। गॉल ब्लैडर टेम्परेली लिवर के बाइल जूस को टेम्परेली स्टोर करता है, तो उसको भी इसमें कंसिडर कर लेंगे। एंड देन देयर इज डुओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। और देन देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन जो एक्सेस वाटर को निकाल करके हमें जो मटेरियल है वो ही प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।